اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج جمعہ کا مبارک دن ہے، 21 فروری ہے، اور میں یہ اہم ویلاگ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے قوم یوتھڑ نے اپنے ہی کپتان کو پھنسا دیا ہے، بلکہ پھنسا نہیں دیا، واڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد خود بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، اور آفت صاحب کی، آفت سید عاصم منیر صاحب کی عزت ان کو پوری پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا آزما خراب ہو گیا تھا۔ اب ان کا آزما درست کیا جا رہا ہے، اور ایسا درست کیا جا رہا ہے کہ ان کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی کہ کس کی عزت کو خراب کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، اس کی عزت کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دینا، پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ بے عزت کر دے اس کو پوری دنیا مل کے بھی عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو اس پہ بات تفصیل سے ہوگی۔ سب سے پہلے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ ایک 75 سالہ بزرگ بندہ اپریٹ کر رہا ہے وہ والا چینل ہے، جو آپ کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے وہ ہے۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید عاصم منیر صاحب، جو کہ الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، اور فاطمہ اور علی کی اولاد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ یہ تمام مستند حدیثوں میں موجود ہے، کسی بھی فرقے کو اطلاف نہیں ہے اس چیز سے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ اور یہ سید عاصم منیر صاحب فاطمہ اور علی کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اس شاہ شمس تبریز کی نسل ہے جس نے ملتان میں سورج کو 1.25 نیزے پہ بلا لیا تھا۔ اگر اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ سورج کو 1.25 نیزے پہ بلا سکے، تو یہ بھی تو اسی کی لڑی ہے، اسی کی قوم سے ہے، اسی کی برادری سے ہے، یہ بھی سید زادہ ہے، اس کو بھی اللہ نے بے پناہ عزت دی ہے، بے پناہ اختیارات دیے ہیں، بے پناہ طاقتیں دی ہیں، اس کو استعمال کر رہا ہے، اور الحمدللہ انہی کی بدولت یہ ملک کو نہ صرف بحرانوں سے نکالنے میں پوری ٹیم کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کامیاب ہوا ہے، بلکہ ترقی کی طرف بھی گامزن کر دیا ہے ملک کو۔ تو وہ آفت سید عاصم منیر صاحب کو دعوت دی گئی انگلینڈ کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے، یہ وہاں پہ گئے، گورنمنٹ کی اجازت سے گئے، پہلا چیف ہے جو گورنمنٹ سے اجازت لے کے گیا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی چیف آئے ہیں نا، گورنمنٹ کو ان سے اجازت صدر اور وزیر اعظم کو لینی پڑتی تھی کہ سرکار اگر اجازت ہو تو ہم اس ملک کا دورہ کر لیں۔ یہ پہلا آیا اللہ کا
नेक बंदा जो कि इजाज़त लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गया है, और वहाँ पे इंग्लैंड में इसको जो प्रोटोकॉल मिला है ना, शाही प्रोटोकॉल मिला है, VIP प्रोटोकॉल, वो हज़म नहीं हुआ कौम यूथड़ से भी और PTI वालों से भी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एहतजाज किया। 50-60 बंदे थे इनके किराए के लाए हुए, कोई 20-25 औरतें थी, कोई 35-40 मर्द थे। 60 से ऊपर नहीं थे, 60 से नीचे ही थे। तो उन्होंने जनाब एहतजाज किया, वहाँ पे बैनर उठाए हुए थे, गलीज और गंदी गालियाँ लिखी हुई थी। एक सैयदजादे को गालियाँ दे रहे हैं। इससे आप इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा कर लें कि ये कुफ़ार से भी बदतर हैं। एक सैयद को जो गाली दे वो कुफ़ार से भी 1000 गुना ज़्यादा बदतर निचले दर्जे में होता है। तो लेकिन वहाँ पे कानून है, वहाँ का कानून हरकत में आया। कुछ यूथड़ गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ के पीछे पुलिस लगी हुई है, इंशाअल्लाह वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का तो कानून ही बहुत सख्त है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जनाब, यहाँ पे भी उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई, और उन्होंने अब इमरान के पोर्टर से भी इसका जो व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा है ना इंग्लैंड में, सॉरी अमेरिका में, वो व्हाट्सएप तो इसका है, लेकिन इसने आगे अपने मालकों को दिया हुआ। ये तो एजेंट है, उनका टाउट है, वो ऑपरेट वो कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए, और उनका नुमाइंदा है आगे जबरान अलियास, जो कि PTI का अहम रुकन भी है, वो ऑपरेट कर रहा है, और वो उसको जो आलमी ताकतें कहती हैं वही उसके ऊपर वो करता है। उसने भी बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। उसके बाद फिर ये देखें, वो 2% का सरकारी मुलाजम जो रिटायर्ड होके 20 लाख रुपए आराम की पेंशन खा रहा है, वो आरफ अलवी, वो कुत्ते की तरह भौंका है वहाँ जाके अमेरिका में पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। उसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह उस पे आर्टिकल 6 लगेगा और वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। आस्ता आस्ता ये सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह मुल्क ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा। तो इन्होंने अब देखें किस तरीके से, कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था किस तरीके से सफाई कर दी गई है। कल जिन लोगों ने मुझे मेरे व्लॉग को पसंद किया, अल्लाह उनकी जुम्मे का मुबारक दिन है, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और जिन्होंने नहीं पसंद किया वो भला तनकीद किया करें, लेकिन बता दिया करें ताकि मैं उस पर अमल करके, क्योंकि ये एक समुंदर है। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे इस फील्ड में 45 साल हो गए तो मैं चैम्पियन बन गया हूँ, नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ, 1975 से सहाफ़त की फील्ड में हूँ। नवाए वक्त अखबार से स्टार्ट किया था। आरिफ निज़ामी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे और नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। तो उस वक्त से लेके आज तक मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। अब नवाए वक्त तो नहीं रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फिर अपना चैनल दे दिया है जिस पे मैं खुल के हक सच बयान कर सकता हूँ। बाकी जितने भी चैनल हैं ना, ये आलमी ताकतों के ही डॉलर लेके बिके हुए होते हैं, वो सच नहीं बताते हैं आवाम को, वो वही बताते हैं जो उनके आका पीछे से उनको हुक्म करते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और घर में जिसका भी व्हाट्सएप बना हुआ उससे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करें। तो अब आप आ जाएं जनाब के किस तरीके से पाकिस्तान में भी इनके वहाँ पे भी गिरफ्तार हो गए हैं, और पाकिस्तान में जो उनके पिछले बैठे हुए हैं ना, उन पे भी हाथ डाल दिया गया। क्या असल हुआ? ये बिगड़ी हुई नस्ल है, ये रोज़ाना। अच्छा, मैं किसी वक्त सोचता था कि ये क्या बात है, इनका दिमाग नहीं है या क्या मसला क्या है इनके साथ, कि ये डेली इनको
कौम यूथड़ के जितने भी व्लॉगर हैं डेली इनको झूठ बोलते हैं कि भाई खान साहब बस रिहा होने लगा है, बस वो निकलने लगा है, बस वो समझें कि अभी के अभी बस वो जेल से रिहा हो जाएगा, आज के आज ही वो खिताब करेगा, जाके बनी गाला में भी करेगा और उसके बाद फिर ज़ुमान पाक लाहौर में जश्न मनाया जाएगा। 2 साल से यही चूना लगा रहे हैं और 2 साल से वो सुन रहे हैं। अच्छा, बाद में मैंने अंदाज़ा किया कि इनको सच अल्लाह ने सुनने की ताकत ही नहीं दी है, सच इनको हज़म ही नहीं होता है। मेरे साथ भी काफ़ी यूथड़ बदतमीज़ी कर जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस बाबे ने भी गाली गलोच में PhD की हुई है। वो अलग बात है कि मैंने अब तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग लिया, मैं गाली गलोच नहीं करता हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मजबूर कर दे ना तो उसको हल्का फुल्का सबक दे भी देता हूँ। तो एक यूथड़ मुझे कहता है कि आपको शर्म नहीं आती है। मैंने आगे से उसको ये जवाब दिया कि क्या मैं तेरी अम्मा के साथ पकड़ा गया हूँ जो मुझे शर्म आएगी? क्या किया मैंने? तेरे घर से पकड़ा गया हूँ। ऐसी बेगैरत नस्ल है ना कि इनका कोई ईमान का लेवल भी नहीं है, बेगैरती का लेवल भी नहीं है, इंतहाई ढीठ। पर इनका भी कसूर नहीं है, इनका तो माँ का गलती है ना, जो जिन्होंने कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्रिश्चियन, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कोई छोड़ा ही नहीं। ये मिक्स पैदावार है। जो मिक्सचर होता है ना, उसका यही हाल होता है, उसका अपना कोई रंग नहीं होता है। ना इनके खून का कोई अपना रंग है, ना इनकी नस्ल का कोई अपना रंग है। इनका लेवल ही कोई और है। इनका लेवल जिस पे अल्लाह ने इनको पहुंचा दिया हुआ ना, उससे नीचे फिर दोज़ख ही है और आखिरी ठिकाना इनका वही है। क्योंकि एक सैयदजादे को जो गालियां दे रहे हैं वो उम्मीद रखेंगे कि वो मुसलमान रहे हैं, वो तो काफिर हो चुके हैं, इस्लाम से निकल चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। तो काफिरों का ठिकाना तो जहन्नम है और इनका ठिकाना भी इंशाअल्लाह जहन्नम ही होगा। तो अभी भी वक्त है, जो बाकी कौम यूथड़ बची हुई है ना, वो इनसे इबरत हासिल करे कि इंग्लैंड में पकड़े भी गए हैं, उनके पीछे पकड़े गए हैं, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई जितने भी थे वो भी पकड़े गए हैं, उनसे भी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। और ना सिर्फ इनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि यहाँ आके इनसे वो भी किया जाएगा, इनसे पूरी तहकीकात की जाएगी। इनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान लाया जाएगा, या फिर एयरपोर्ट पे ही इनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे FIA वाले। वो फिर वहाँ इनसे इस्तकबाल करेंगे इनका, और वहीं से फिर इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले अच्छी लितरॉल होगी ना, क्योंकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट सही लितरॉल नहीं करती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़रा और तरीके से लितरॉल करती है ना, जो कि इनको ये समझ में आ जाती है फिर ये बात। तो अभी जो बाकी रह गए हुए हैं वो इनसे इबरत हासिल करें, या जिन में ईमान की रत्ती बाकी है वो तौबा इस्तग़फ़ार करें। नए सिलसिले, नए तरीके से अगर किसी ने हाफ़िज़ को गाली दी है, सैयद को गाली दी है, सैयदजादे को गाली दी है, तो वो अल्लाह से सिद्क़ के दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करे, दोबारा कलमा पढ़े, दोबारा अपनी बीवी के साथ निकाह करे, क्योंकि उसका निकाह भी टूट जाता है। जो इंसान इस्लाम से निकल जाता है ना, उसका निकाह भी टूट जाता है। तो और आइंदा के बाद अहद करें कि हमने इस पार्टी का साथ नहीं देना है, क्योंकि ये तो 99% कादियानियों की पार्टी है। 1% कोई हो मुसलमान तो उनकी मैं नहीं कहता हूँ, वरना ये 99% इस पार्टी में कादियानी है, जो कि इस्लाम से ही खारिज है। पाकिस्तान के आइन में जिनका लिखा हुआ है कि ये इस्लाम से खारिज है, ये काफिर है, ये आइन में मौजूद है। ना तो इनको मस्जिद बनाने की इजाज़त है, ना सरेआम नमाज पढ़ने की इजाज़त है, ना इज्तिमा करने की इजाज़त है। और उसके बाद देखें किस तरीके से
اللہ کی کرم نوازی سے ملک تیزی سے ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ملک کا سوچیں، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ یہ اگر ملک قائم رہے گا نا تو کئی عمران ابھی آئیں گے، کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی حمزہ شہباز آئیں گے، کئی مریم نوازیں آئیں گی، کئی بے نظیر آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی بلاول آئیں گے، کئی مولانا آئیں گے، کئی مفتی محمود آئیں گے۔ ملک کی خیر ہونا چاہیے، ملک قائم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ اور افواج پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور افواج پاکستان کو ان دہشت گردوں کو چن چن کے جہنم واصل کرنے میں غیب سے مدد فرمائے۔ یہ خارجی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو جہاں دیکھو وہیں پہ ان کو قتل کر دو۔ اسی پہ ہی اب ہماری فوج عمل کر رہی ہے، ان کو جہاں دیکھتی ہے وہیں پہ ان کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔